সো হেল্ল' গাইজ, আই হোপ চবে ভালে আছে। চ' আজি নিফটি ফিফটিত এনালিচিছ কৰি লওঁ, ঠিক আছে। কাৰণ নিফটি ফিফটি ভালকৈ আমি বুজিব পাৰিম। বাকী দুটা চিনচেক্স আৰু বেংক নিফটিত অলপ বেলেগ ষ্টাৰ্ট হৈ আছে, ঠিক আছে। যদি চাওঁ ৰাতিপুৱা আমি ইয়াতে ট্ৰেড লৈছিলোঁ ডাউন ছাইডত, ঠিক আছে। বেংক নিফটিৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে প্ৰফিট হৈছে, বাকী দুটা মানে চিনচেক্সতো ভাল মুভমেণ্টাম অহা নাছিল, ঠিক আছে। তো মোমেণ্টাম আপ গৈছে, পিছত ডাউন। তো এইটো লেভেলৰ পৰা ডেফিনেটলি ইয়াতে চেলাৰ্ছ এড হ'ব আৰম্ভ কৰিছে, কাৰণ ভাল এটা পাইছে। তো ইয়াতে সিহঁতে ৰাখিছে, ঠিক আছে। তো এনেকুৱাকৈ মাৰ্কেট অলপ ডাউন ছাইডৰ মোমেণ্টাম আহিছে। ইয়াৰ পৰা ইয়াতেতো কিছুমানে যদি ওলাই গৈছে যাব পাৰে। তাৰপিছত মাৰ্কেটে ইয়াতে ছাইডৱেজ মোমেণ্টাম দি দিছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত আৰু ইয়াতে ডাউন দি দিছে। তো ইয়াতে বায়াৰ চেলাৰ্ছ দুটা ছাইডৰে আহিছে, ট্ৰেডাৰ আহিছে। বাট এজ কম্পেয়াৰ টু বায়াৰ্ছ চেলাৰ্ছো ইয়াতে আহিছে বেছি, আৰু ইয়াতে বায়াৰ্ছ আমি এইটো লেভেলত পাম, ঠিক আছে। চ' ইয়াৰ কাৰণে আমি প্লেনিংকে ৰাখিছোঁ। ইয়াতে যদি আমি অপেনিং পাওঁ তো আমি ইয়াৰ পৰা বাইং কৰিব আৰম্ভ কৰিম। বাট এইটো ব্ৰেকআউট হোৱাৰ পিছত আমি এইখিনি লেভেলৰ পৰা বা এইখিনি লেভেলৰ পৰা আমি ইয়াতে ডাউনৰ মুভমেণ্টাম পাব পাৰোঁ। চ' ইয়াৰ কাৰণে আমি এইখিনি লেভেলতে এক্সিট কৰিব মাৰিব লাগিব যদি আমি ইয়াতে বাইঙৰ ট্ৰেড পাওঁ, ঠিক আছে। ফ্লেটত কোনো ইয়াতে ট্ৰেড নাই, ন' ট্ৰেড। ইয়াতে আমি বাইং কৰিম, ইয়াতে ন' ট্ৰেডিং, ইয়াতে আমাৰ চেলিং, ঠিক আছে। চ' এইটো আমাৰ ইয়াতে এনালিচিছ। বাকী দুটাটো ইয়াতেও ছেম। এইটো লেভেলৰ পৰা ওপৰত আমি বেছি এক্সপেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ মুভৰ, কাৰণ ইয়াতে অনলি অন বায়াৰ্ছ। এইটো ব্ৰেকআউট হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে বায়াৰ্ছ এড হ'ব আৰম্ভ কৰিব। চ' ইয়াৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ ওপৰত বেছি এক্সপেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ, ঠিক আছে। তাৰপিছত ফ্লেটত আমি ট্ৰেড এণ্ট্ৰি বনাব নোৱাৰোঁ। কেপডাউনো আমি চেলিং ছাইড আইডেণ্টিফাই কৰিম। ছেম বেংক নিফটিত এইটো লেভেলৰ পৰা যেতিয়া ডাউন মুভমেণ্টাম আহিছে, চ' ডেফিনেটলি ইয়াতে ট্ৰেডাৰবোৰে এণ্ট্ৰি মাৰিব আৰম্ভ কৰিছে। চ' সিহঁতে ইয়াতে প্ৰফিট লৈ ওলাইও যাব পাৰে। ইয়াৰ পৰা এইখিনি মুভমেণ্টাম ভালে এটা মুভমেণ্টাম। চ' তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা এইখিনি মাৰাকৈ ছাইডৱেজ। চ' ইয়াতে বায়াৰ্ছ দুটা আহিব। তো বায়াৰ্ছ যদি আহে আমি এইটো লেভেলত সিহঁতৰ এছ এল পাম। চেলাৰ যদি আহে ইয়াৰ 100-100ৰ তলত আমি পাম, ঠিক আছে। চ' ইয়াৰ কাৰণে আমি ইয়াতে চেলিং ছাইড আইডেণ্টিফাই কৰিম। কেপ পাবলৈ আমি বাইং ছাইডত, ফ্লেটত আমাৰ নট প্লেনিং, কাৰণ আমি মাৰ্কেট মুভমেণ্টাম চাব লাগিব। তাৰপিছত আমি ইয়াতে ট্ৰেড কৰিম, ঠিক আছে। লেটছ চি প্ৰি অপেনিঙৰ কৰোঁতে আমি কেনেকুৱা মুভমেণ্টাম পাওঁ। তো মাৰ্কেট অ'পেন হোৱাৰ লগে লগে ডাউন ছাইডৰ মুভমেণ্টাম কৰিছে। যদি ডাউন ছাইডে এইটো মুভমেণ্টাম কৰিছে, যোনবোৰ ইয়াতে বায়াৰ্ছ আছিল সিবোৰৰ এছ এল হিট, তো ডেফিনেটলি ইয়াতে হ'ব। এছ এল যিবোৰ ইয়াতে ৰাখিছিলে, তো এছ এল হিটো ডেফিনেটলি হৈ গ'ল, ঠিক আছে। তো এতিয়া মাৰ্কেট অনলি অন ইয়াতে চেলাৰ্ছবোৰে ইয়াতে প্ৰফিট পালে, ঠিক আছে। তো এতিয়া মাৰ্কেট কি হ'ব যে মাৰ্কেট আৰু এইটো ব্ৰেকডাউন কৰিব লাগে। তো এইটো যদি ব্ৰেকডাউন হয় তো ইয়াতে অনলি ওৱান চেলাৰ্ছে এণ্ট্ৰি মাৰিব আৰম্ভ কৰিব। তাতেতো আমি ইয়াতে বাইঙৰ ট্ৰেড আইডেণ্টিফাই কৰিম, ঠিক আছে। তো চিম্পল, আমি ইয়াতে ভাবিছোঁ, চাওঁ আমাৰ অনুসৰি ইয়াতে পাওঁ নে নাপাওঁ ট্ৰেড, ঠিক আছে। তো ব্ৰেকডাউন আহিলে ভাল হ'ব। বাট চিনচেক্স যদি চাওঁ আমি এইটো জনৰ পৰা যদি যায় একো কথা নাই, তাতে আমি ইয়াতে এণ্ট্ৰি ল'ব পাৰোঁ, কাৰণ ইয়াতে যিমান এছ এল আছিল না চব ইয়াতে হিট হৈ গ'ল অলৰেডি। তো এইটো লেভেলৰ তলত যদি পাওঁ এইটোতো बहुत बढ़िया, बट যদি নাপাওঁ একো কথা নাই, ट्राई करेंगे हमें, ठीक है सर। लेट्स सी। तो यहाँ पे देखिए अभी जो है इसमें फर्स्ट बाइंग आ रहा है। तो फर्स्ट बाइंग में हम नहीं घुसेंगे क्योंकि यहाँ पे हम ट्रेप जो है ना वो ज़्यादा हो जाएंगे। ये फर्स्ट बाइंग दिखा रहा है ना, ये एक धोखा है, क्योंकि यहाँ पे ये अभी सेलिंग में होगा, ठीक है। तो अच्छा खासा यहाँ पे सेलर्स ऐड होने देते हैं, उसके बाद हम बाइंग में ट्रेड यहाँ पे करेंगे। अभी तो हम यहाँ पे प्लानिंग नहीं बनाएंगे, ठीक है। कारण जो है इसमें अभी अगर हम देखें तो सेलर्स का अवेलेबल है नहीं, मतलब सेलर्स का एसएलए वहाँ पे अवेलेबल है नहीं। तो जब होगा तब हम यहाँ पे पकड़ेंगे, अदरवाइज़ हम अभी नहीं पकड़ेंगे। थोड़ा यहाँ पे रुकना पड़ेगा हमको। मिनिमम ये लेवल तो यहाँ पे ब्रेक डाउन होना चाहिए, तभी यहाँ पे जो है ना सेलर्स जो है ऐड होना शुरू होगा। देन उसी को हंट करते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से सेलिंग का प्लानिंग तो अपने पास नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ से सेलिंग करें ना, फिर भी हमारे यहाँ पे कोई एसएल है ही नहीं बायर्स का। तो बायर्स का अगर एसएल नहीं है तो यहाँ पे मार्केट सिर्फ साइडवेज कर सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ से बाइंग का प्लानिंग जो है ना वो यहाँ पे ज़्यादा वो हो रहा है, मतलब परफेक्ट मेरे को लग रहा है। हालांकि मार्केट में कोई परफेक्ट नाम की चीज़ होता नहीं है, वो मार्केट के ऊपर है सब कुछ। मार्केट कब क्या कर दे किसी को नहीं पता। बट जो लॉजिक, जो अपना साइकोलॉजी, जो अपना एसएल हंटिंग है, उसी के ऊपर हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। मार्केट को आने दें नीचे यहाँ कहीं पे, तो वह बेहतर है। और यहाँ से मिले तो वो तो भाई वो और भी बात अच्छा होगा वो, ठीक है।
तो पहले इसका ब्रेकडाउन होने देते हैं, ठीक है, हम तब तक रुकते हैं। इसमें मोमेंटम अगर आए ना तो आने देते हैं। अगर ये यहाँ पे मोमेंटम आता है ना, यहाँ जैसे कि यहाँ पे मान लो यहाँ पे मोमेंटम आ गया, हमने हमारे साथ ये मिस हो गया, तो उसमें हम सेलिंग साइड ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से अगर ऊपर उठता है ना तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायस आएगा। अगर बायस आएगा तो यहाँ से मार्केट घूमेगा और देन यहाँ पर ब्रेकडाउन हमको मिल जाएगा, तो उसी में हमारा यहाँ पे टीपी हिट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें बायस आता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर सेलर्स आता है तो भी बहुत बढ़िया बात है। सेलर्स इसमें आएगा कि इसको मार्केट तोड़े तो इसमें सेलर्स आएगा, अगर ये मार्केट यहाँ से मोमेंटम दिखाए तो इसमें बायर्स आएगा। तो दोनों कंडीशन में हमको यहाँ पे ट्रेड मिलेगा। अगर यहाँ से सीधा ऊपर जाता है फिर आता है, मतलब यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो हम यहाँ में सेलिंग साइड की तरफ आइडेंटिफाई करेंगे, और इसको अगर ब्रेकडाउन करता है तो इसमें हम बाइंग साइड की सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, हालांकि मार्केट में यहाँ से जो है मेरे को ट्रेड करने का, मतलब यहाँ पे ट्रेड पंच करने का मन कर रहा है, जो कि हमको ये कंट्रोल करना ही पड़ेगा, वरना यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो इनवाइट हो गया है, लेकिन उतना परफेक्ट नहीं हुआ है कि ये पूरा मोमेंटम ले सके, ठीक है। तो यहाँ पे मन तो कर रहा है, परफेक्ट तो नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा मोमेंटम करेगा फिर घूम जाएगा। अगर ये वाले कैंडल से हम करें तो ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मोमेंटम आने देते हैं ऊपर से थोड़ा सा, अगर आता तो ये बेहतर हो सकता है हमारे लिए सेलिंग करना। यहाँ पे बायर्स इनवाइट हो जाएगा, बायर्स आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कल सेल करके बैठा हुआ था ना, तो उनको टारगेट करना तो यहाँ पे पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे रखेगा। अगर ये लोग यहाँ से पोजीशन बनाया ना तो इसमें उसका बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बन गया होगा, ठीक है। तो इन्हीं सेलर्स को तो हम टारगेट यहाँ पे बना नहीं सकते हैं, तो हम बाइंग भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सेलर्स तो इस कैंडल में तो ऐड होगा ही नहीं सेलर्स, ठीक है। अगर बाइंग हम यहाँ पे कर नहीं सकते तो यहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि मार्केट यहाँ पे जो है एसएल अवेलेबल है ही नहीं है बायर्स का, तो ये सेलिंग में आएगा भी कैसे। मतलब यहाँ पे दोनों साइड थोड़ा अलग यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो ये जो मोमेंटम आ रहा है ना, अगर यहाँ पे सेलर्स है नहीं तो यहाँ पे ये थोड़ा आएगा फिर घूम जाएगा, ठीक है। तो ये कैंडल जो है ना, ये मेरे को नज़र आ रहा था, इसलिए हम सोचा कि यहाँ पे मतलब लालच दे रहा है कि हमको यहाँ पे ट्रेड बनाना चाहिए। हालांकि हम बना लेता, लेकिन यहाँ पे अगर बायर्स का ऐसे अवेलेबल हो जाता, ये नहीं है, सो हम यहाँ पे एंट्री नहीं बनाया, वरना हम यहाँ पे बना लेते। तो देखते हैं ये ब्रेकडाउन होने के बाद हम कैसे यहाँ पे करते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात अगर करूँ तो हम यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये भी रुकना यहाँ पे शुरू किया है, तो ऐसे में हमको यहाँ पे ट्रेड बना लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है ना, थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। तो यही थोड़ा सा यहाँ पे डर है, पर निफ्टी फिफ्टी तो जाना ही चाहिए ऊपर। फिर देखते हैं, और थोड़ा सा हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे, क्या ये ब्रेकआउट देगा क्या, इसको देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे प्लानिंग करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे बाइंग का पोजीशन बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो और नीचे आना नहीं चाहिए मार्केट को, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, अभी कौन यहाँ से बाइंग कर रहा है, तुम खुद ही सोचो, यहाँ पे कौन यहाँ से बाइंग कर रहा है। देखो मार्केट ये है और ये है, यहाँ पे कौन बाइंग करेगा, ठीक है। बाइंग अगर नहीं करेगा तो यहाँ पे एस एल अवेलेबल होगा नहीं। तो अगर एस एल ही नहीं है तो मार्केट मोमेंटम क्यों करेगा। मतलब देखो, कोई बेचने वाला होगा तो वहाँ पे, मतलब बेचने वाला होगा तो वहाँ पे बाइंग बाइंग कर सकते हैं। अगर बेचने वाला ही नहीं है तो यहाँ पे कैसे बाय करेगा वो चीज़ें। तो यहाँ पे तो फुलफिल थोड़ा सा अगर है ना, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा भी बाइंग दिखाना पड़ेगा। अगर इसमें बहुत सारे सेलर्स जो है ना, यहाँ पे बहुत हर मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एंट्री हो चुका है। तो और इसमें ये है बैंक निफ्टी और ये है सेंसेक्स। सेंसेक्स में ये वाला ब्रेकडाउन होना हो गया है, होने वाला है, तो इसमें ब्रेकडाउन हो गया, फिर सेंसेक्स में ब्रेकडाउन होने वाला है, थोड़ा सा यहाँ पे हल्का बचा हुआ है, और बैंक निफ्टी में भी इसके आसपास भी आ गया है। तो अभी यहाँ से बाइंग तो आना चाहिए, थोड़ा सा हम यहाँ पे और थोड़ा सा रुकेंगे। तो भाई मैं तो यहाँ पे रिस्क ले रहा हूँ बाइंग साइड में, क्योंकि मेरा जो ट्रेडिंग का वो है तो इसमें बाइंग साइड बता रहा है। तो मैंने यहाँ पे बाइंग साइड के ट्रेड आइडेंटिफाई कर लिया कि बाइंग साइड बाइंग करना है हमको, तो बैंक निफ्टी में भी कर लेते हैं।
उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा। अभी थोड़ा सा रुकते हैं यहाँ पे, ये लगातार मोमेंटम आ रहा है तो रुकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। सेंसेक्स में तो हमने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दिया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में बचा हुआ है, तो बैंक निफ्टी में भी कर लेते हैं। बाद में देखा जाएगा कि हमने यहाँ पे गलत किया या फिर सही किया। अभी तो हम लॉस पे ही बैठा हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा इस ट्रेंड सेलिंग में हमने यहाँ से बाइंग का ट्रेड पकड़ा है। क्यों पकड़ा है वो तो मैंने लॉजिक बता दिया है। तो यहाँ पे हल्का फुल्का हमको लॉस यहाँ पे नज़र आ रहा है। मेरे को नहीं लगता है कि ये दोनों इंडेक्स में ब्रेक डाउन होने के बाद बैंक निफ्टी में ब्रेक डाउन होगा फिर से। हो भी सकता है, मार्केट कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमारे मुताबिक यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह के यहाँ पे ऐसे अवेलेबल है नहीं। अगर है नहीं तो यहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम आना नहीं चाहिए। यहाँ से यहाँ पे मार्केट को बाइंग की तरफ ले जाना चाहिए। देखते हैं कितना हम सही बेचते हैं और कितना हम गलत बेचते हैं। तो यहाँ पे हम जो है हल्का प्रॉफिट में तो आ गया है। ऐसा ना हो कि ये सिर्फ बायर्स इनवाइट यहाँ पे कर रहा है फिर से मार्केट यहाँ से घुमा दे, तो ये भी हो सकता है। लेकिन हम तो यहाँ पे ट्रेड बना के बैठे हैं तो रुकना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हल्का हमारा प्रॉफिट दिखा रहा है। देखते हैं इन द एंड हमको क्या मिलता है। बैंक निफ्टी तो बहुत अच्छा यहाँ पे साथ दिया हमारा, लेकिन सेंसेक्स जो है वो काफ़ी पीछे है, जो कि कल की तरह यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी अगर और थोड़ा जाता है तो अच्छा था, लेकिन यहाँ से घूम भी सकता है। ठीक है, तो देखते हैं हमको लास्ट में क्या मिलता है। अभी सेंसेक्स तो लॉस ही यहाँ पे हो रहा है, बैंक निफ्टी में नीचे आने का कोशिश यहाँ पे कर रहा है। बैंक निफ्टी में अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम आ गया है, बहुत बढ़िया। ओके, हम यहाँ पे निकल जाते हैं अभी। ठीक है, और ज़्यादा लालच हमारे लिए अच्छी बात है नहीं। 35 पॉइंट्स इंडेक्स में इस बहुत दिन से हमारा लॉस हो रहा था, तो उसी को हमारा रिकवर करना है के लिए हम यहाँ से निकल गए, वरना मार्केट में हम और बैठे ले सकते थे। ओ भाई यार, क्या ही मोमेंटम दे दिया। तो आज आज की प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 3100 हमने यहाँ पे आज अचीव कर पाया, जो कि यहाँ पे इतना ही पॉइंट मिला। हाँ, लेकिन हमने यहाँ पे बुकिंग करना बेहतर समझा, क्योंकि हमको और ओवरऑल नहीं चाहिए इतना प्रॉफिट। जो हमारा मिनी मैक्स मतलब हमारा टारगेट तो रहता है 3K, पर 3K ही हमको यहाँ पे मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमने तो यहाँ पे एंट्री लेने का कारण हमने क्या देखा, तो अभी फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे अच्छा एक सेलिंग का मौका हमको दे रहा है। हालांकि यहाँ पे अगर ऐसे अवेलेबल हो जाता तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली ये वाला एंट्री कर लेता। ठीक है, तो ये वाला मोमेंटम आएगा कि नहीं वो मेरे पे थोड़ा सा डाउट था यहाँ पे। ठीक है, फिर आ गया तो कोई दिक्कत है नहीं। पर फिर हमने निफ्टी 50 तो पहले से हम देख रहा था इसमें ही, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला यहाँ पे फिर बाइंग ट्राई किया, यहाँ पे नहीं हो पाया। फिर यहाँ पे बाइंग ट्राई किया, नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पे सेल्स जो बायर्स था ना, यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे सेल्स में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इतना बड़ा यहाँ पे मोमेंटम दे दिया। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हमने फिर सेंसेक्स को देखा। सेंसेक्स में भी ब्रेक डाउन यहाँ पे हो गया है, तो अगर दोनों इंडेक्स में ब्रेक डाउन हो गया है तो थर्ड इंडेक्स में होगा नहीं। तो इसलिए हमने बेहतर समझा कि यहाँ से हम ट्रेड पकड़ते हैं। एंड देखो हमारा ये पिन पॉइंट एंट्री बन गया था, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पिन पॉइंट हो जाएगा, बट हो गया पिन पॉइंट। तो ठीक है, तो एंट्री लेने का रीज़न यही था कि यहाँ पे हम सेलिंग तो कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एसएल बायर्स का अवेलेबल हुआ नहीं था। जैसे कि हमने यहाँ पे थोड़ा जूम आउट करके भी बताया था कि यहाँ पे कोई यहाँ पे कौन ही बाई करेगा, यहाँ से कौन मतलब यहाँ से बाइंग करने का कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे बाइंग का। ठीक है, जो हमने शायद सेंसेक्स में बताया था। तो अगर नहीं है और दो इंडेक्स में अगर ऑलरेडी ब्रेकडाउन होके सेलर्स को इनवाइट कर दिया है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही ऐड हो गया। तो इसी के कारण हम यहाँ से जो है बाइंग में अपना अपॉर्चुनिटी ढूंढा है, जो कि हमने इसमें भी बताया था, मैंने यहाँ पे भी बताया था कि ये अगर ब्रेकडाउन हो तो वहाँ पे हम बाइंग साइड की तरफ आइडेंटिफाई करेंगे, और ये यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ पे हम सेलिंग साइड की तरफ आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ऐड हो जाता तब। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने आज सोचा। तो फ्लैट में हमारा कोई प्लानिंग नहीं था, इसलिए हमारा यहाँ पे प्लानिंग नहीं था कि हम मार्केट को देखें, उसके हिसाब से साइकोलॉजी समझे एंड अपना ट्रेड पंच करें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।